Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss CCS Classification Control and Appeal Rules 1965. It means Central Civil Services CCA Rules 1965. It is part 2. So, in first part, already I have discussed rules 1 to 7, and in this part, I will discuss rules 8 to 10. And special actually case is actually suspension. In this part I will discuss about suspension, and you can get actually clarity very lucidly and very briefly. I will discuss each and every rule from 8 to 10, and also 27 MCQs also I will discuss. Latest pattern of question and pattern of descriptive questions. If subjective examination if you will face, then also what type of question is coming related to the descriptive question also I will discuss. Subscribe my YouTube channel Asit Government Tool Guru. Please my friends, subscribe my channel, like my channel, share my channel, so that you can get notification for upcoming videos. So my contact WhatsApp number, it is 8327782034, and my Telegram channel is there. Telegram channel link, it is t.me/bap8034. You can, if any query is there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss CCA rules 1965 part 2, rules 8 to 10, and also discuss 27 MCQs, and also pattern of descriptive questions also I will discuss, and it is useful for all central government exams. Rule 8 is very important one. Rule 8, rule position, first you remember, it is appointments to group A services and post. So you know that related to the post, actually 4 groups: group A, group B, group C, group D. But here actually rule 8, it is appointments to group A services and post. So first part I will discuss who appoints group A officers. So normally the Honorable President of India is the authority, right, who makes appointments to all group A central civil services and post. Is the highest category civil post. Central civil services means actually those services we can take. These services only operate in union government, in central government, or another one all India services. So all India services actually जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, कि इंडियन पुलिस सर्विस है, राइट, कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, वो बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करेंगे. मगर ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है ओनली यूनियन गवर्नमेंट में आ जाता है. तो इसका जो ग्रुप ए पोस्ट है, एक्चुअली द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी हु मेक्स अपॉइंटमेंट्स टू ऑल ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट. इट इज द हाइएस्ट कैटेगरी सिविल पोस्ट. एग्जाम्पल में दे दिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में फर्स्ट पार्ट में भी बोला था. तो ये जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस वो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है. इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ये सब यूनियन गवर्नमेंट में काम होता है, तो इसका स्टेट गवर्नमेंट में कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज है. दो सर्विसेज एक्चुअली मेनली फंक्शनिंग इन यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहां पर क्या है, सेकेंड वन, प्रेसिडेंट के पास में एक डेलीगेशन पावर है, वो और कोई अथॉरिटी को दे देंगे ग्रुप ए ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करने के लिए, चाहे वो कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी अदर अथॉरिटी को वो डेलीगेशन ऑफ पावर देंगे. ठीक है, तो प्रेसिडेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे आगे में, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस आज ही में स्पेसिफाई इन सच ऑर्डर डेलीगेट टू एनी अदर अथॉरिटी द पावर टू मेक सच अपॉइंटमेंट्स. यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, चाहे बाय जनरल और ए स्पेशल ऑर्डर एंड कुछ सब्जेक्ट टू ए सच कंडीशंस ही में स्पेसिफाई. वो ऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को मेंशन करेंगे, और बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ही हैज गिवन दिस पावर टू एनी अदर अथॉरिटी टू अपॉइंट ग्रुप ए ऑफिसर्स.
वो डेलीगेशन ऑफ पावर एक्चुअली हैंड ओवर करेंगे टू एनी अदर अथॉरिटी। मैं कुछ एग्जांपल्स दिया, उसके ऊपर भी आगे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, कैन द प्रेसिडेंट डेलीगेट दिस पावर? यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, क्या उनके पास डेलीगेशन ऑफ पावर है? क्या वो एनी अदर अथॉरिटी को बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में मेंशन करेंगे कि ये अथॉरिटी एक्चुअली ये ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट देगा? तो यहां पर मेरा आंसर है एस। द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज मीन्स डेलीगेट सम अदर अथॉरिटी। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो क्या करेंगे ना, एनी अदर ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे, जैसे लाइक ए मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। ओके, मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट को वो डेलीगेशन ऑफ पावर देंगे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड को दे देंगे, और एनी अदर ऑफिसर को वो डेलीगेशन ऑफ पावर देंगे, ऑथराइज करेंगे कि वो ग्रुप ए ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दिस डेलीगेशन कैन बी डन थ्रू। ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर वो एक ऑर्डर एक्चुअली रिलीज करेंगे। ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर वो जो अथॉरिटी में डिस्कस किया ऊपर में, उनको वो एक्चुअली वो पावर देंगे बाय जनरल ऑर्डर। ये अप्लाइज ब्रॉडली टू मेनी केसेस में जनरल ऑर्डर होता है, और एक स्पेशल ऑर्डर। स्पेसिफिक स्पेसिफिक सर्विस में स्पेशल ऑर्डर होता है, मगर जनरल ऑर्डर बेसिकली जनरली मेनी केसेस में होता है, और स्पेशल ऑर्डर एक स्पेसिफिक केस और सर्विस में अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप ए पोस्ट को एक्चुअली अल्टीमेट अथॉरिटी इज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ओके, क्वेश्चन आएगा, और यदि क्वेश्चन पूछता है क्या कैन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट डेलीगेट दिस पावर टू एनी अदर अथॉरिटी? इज ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट दिस पावर टू एनी अदर अथॉरिटी। तो एनी अदर अथॉरिटी जो वो कौन कौन है? द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट हो सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और एनी अदर हायर ऑफिसर हो सकते हैं। और वो क्या करेंगे ना, जो डेलीगेशन ऑफ पावर को वो हैंड ओवर करेंगे कोई अथॉरिटी को, उसमें एक जनरल ऑर्डर होता है, वो जनरली मैक्सिमम केसेस में होता है, और स्पेशल ऑर्डर होता है। स्पेशल ऑर्डर स्पेशल केसेस और स्पेसिफिक सर्विस के लिए होता है। ठीक है, और उसमें कुछ कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस भी वो मेंशन करेंगे। ठीक है, ये जो ऑर्डर वो रिलीज करेंगे, जो डेलीगेशन ऑफ पावर को हैंड ओवर करेंगे, उसमें कुछ सच कंडीशंस भी वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप ए पोस्ट के लिए, चाहे सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल पोस्ट। जो सेंट्रल सिविल पोस्ट है वो कोई सर्विस में नहीं आता है। सेंट्रल सिविल पोस्ट एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर सर्विस। मगर सेंट्रल सिविल सर्विसेज में क्या आता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। में मेरा पहला पार्ट वीडियो में बोला था, क्लियर, कि सपोज इसमें आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक बेसिकली डिपार्टमेंट्स आ जाता है, IRS आता है, कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आता है, कि इंडियन सेक्रेटरिएट सर्विस आता है, वो ओनली फंक्शन, इट मींस वर्किंग इन यूनियन। ठीक है, तो उनका जो बेसिकली ग्रुप ए ऑफिसर्स, और बेसिकली और एक है सेंट्रल सिविल पोस्ट है। सेंट्रल सिविल पोस्ट एक्चुअली कोई सर्विस में नहीं आता है, पहला पार्ट में मैं डिस्कस किया था। ठीक है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ग्रुप ए पोस्ट को आप याद रखिए, जो हाईएस्ट सिविल पोस्ट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली ही हैज पावर टू गिव द अपॉइंटमेंट। यदि वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे तो वो डेलीगेशन ऑफ पावर दे देंगे और कोई अथॉरिटी को। ठीक है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड विथ सच स्पेसिफिक कंडीशंस आल्सो ही और सी may mention, the honorable president may mention। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, मैं बोला था 27 MCQs। अभी ये जो रूल पोजीशन में बताया, ये रूल 8 था, CCA रूल्स 1965 का रूल 8 था, जो ग्रुप ए अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसी रिलेटेड में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज, राइट, एंड पोस्ट। स्टेटमेंट्स दिया है, 3 स्टेटमेंट्स गिवन। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दिया करेक्ट को। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डेलीगेट दिस पावर टू एनी अदर अथॉरिटी। डेलीगेशन इफ अलाउड कैन बी मेड ओनली बाय ए स्पेशल ऑर्डर। ये दिया है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। ऑल अपॉइंटमेंट्स एक्चुअली ग्रुप ए पोस्ट
ऑनरेबल प्रेसिडेंट के वो अथॉरिटी है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी, ओके, हु हैज पावर टू अपॉइंट ग्रुप ए पोस्ट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट डेलीगेट दिस पावर टू एनी अदर अथॉरिटी, ये गलत है, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, तो वो डेलीगेशन ऑफ पावर में और कोई अथॉरिटी को वो पावर हैंड ओवर करेंगे, अभी मैं डिस्कस किया, ठीक है, तो ये गलत है, वो दिया है द प्रेसिडेंट कैन नॉट डेलीगेट। डेलीगेशन इफ अलाउड, यदि डेलीगेशन ऑफ पावर अलाउ है, कैन बी मेड ओनली बाय ए स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल नहीं, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, दो ऑर्डर होता है। जनरल ऑर्डर क्या है, वो जनरली मेनी केसेस में होता है, और एक स्पेशल ऑर्डर होता है स्पेसिफिक केसेस और स्पेसिफिक सर्विसेज में एक स्पेशल ऑर्डर होता है, ओके, दो प्रकार का ऑर्डर में एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट करने के लिए जो पावर है, वो डेलीगेशन ऑफ पावर को हैंड ओवर करते हैं एनी अदर अथॉरिटी को। तो एक जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर बेसिकली मैक्सिमम केसेस में होता है, और एक स्पेशल ऑर्डर है जो स्पेसिफिक केसेस और स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है करेक्ट स्टेटमेंट मीन्स ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखेंगे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विस, ठीक है। स्टेटमेंट 1, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप ए पोस्ट इज ऑलवेज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप ए पोस्ट एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, ये गलत है, ठीक है। द प्रेसिडेंट में डेलीगेट अपॉइंटमेंट पावर्स टू अनदर अथॉरिटी, ये करेक्ट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली वो ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, तो वो डेलीगेशन ऑफ पावर हैंड ओवर करेंगे टू एनी अदर अथॉरिटी को, ठीक है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर विथ सच मे बी सम स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड वन, ग्रुप ए पोस्ट आर द हाईएस्ट लेवल इन द सेंट्रल सिविल सर्विसेज, यस, ये भी करेक्ट है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में 4 ग्रुप्स होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जो ग्रुप ए पोस्ट हाईएस्ट होता है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ओनली स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द CCA rules 1965, which of the following correctly describes the president's role in appointments to group A central civil services, right? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन द प्रेसिडेंट पर्सनली मेक्स ऑल अपॉइंटमेंट्स विदाउट डेलीगेशन, ये गलत है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, तो उनके पास डेलीगेशन ऑफ पावर है, वो डेलीगेशन ऑफ पावर और कोई अथॉरिटी को दे सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स बट कैन डेलीगेट दिस पावर थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ये ठीक है, अल्टीमेट अथॉरिटी इज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, तो वो डेलीगेशन ऑफ पावर एनी अदर अथॉरिटी को देंगे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, तो सेकंड स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। द प्रेसिडेंट हैज नो रोल, यूपीएससी मेक्स द अपॉइंटमेंट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द स्टैट्यूटरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप ए पोस्ट, ये भी गलत है, तो उसमें आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वो करेक्टली डिस्क्राइब्स दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रेसिडेंट्स रोल इन अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements about delegation of appointment power by the president is or are correct? ये जो डेलीगेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पावर, जो डेलीगेशन ऑफ पावर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, वो और कोई अथॉरिटी को वो पावर हैंड ओवर करते हैं ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट देने के लिए, उससे रिलेटेड में है, करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डेलीगेशन कैन बी मेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ये ठीक है। डेलीगेशन कैन बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। डेलीगेशन कैन बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस स्पेसिफाइड, जो ऑर्डर रिलीज करेंगे जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर, आप क्लियरली देख लीजिए, क्लियरली मेंशन है, जो ऑर्डर जनरली रिलीज करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इसमें क्लियरली मेंशन है डेलीगेशन कैन बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, ऑर्डर में मेंशन है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, वंस डेलीगेटेड द प्रेसिडेंट कैन नॉट विथड्रॉ द पावर, तो ये गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, सो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स एक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, तो वहां पर क्लियरली एक सेंटेंस आप देखिए, रूल 8 को आप एक सेंटेंस दिया है कि द प्रेसिडेंट में बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस आज ही में स्पेसिफाई इन सच ऑर्डर। यदि जनरल ऑर्डर में वो एक्चुअली ऑर्डर देते हैं, एनी अदर अथॉरिटी को पावर देते हैं, कि स्पेशल ऑर्डर में वो एनी अदर अथॉरिटी को पावर देते हैं, उसमें ही में स्पेसिफाई, वो सर्टन कंडीशंस को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑर्डर में। तो वही दिया है सेकंड स्टेटमेंट, डेलीगेशन कैन बी सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, कैन बी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, क्लियरली मेंशन है, आप रूल में देख लीजिए कि द प्रेसिडेंट में बाय ए जनरल और ए स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस आज ही में स्पेसिफाई इन सच ऑर्डर। तो ऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस वो स्पेसिफाई कर सकते हैं जब डेलीगेशन ऑफ पावर वो हैंड ओवर करेंगे एनी अदर अथॉरिटी को ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट देने के लिए। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो है कि वंस डेलीगेशन ऑफ पावर देने के बाद उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following authorities may appoint a group A officer if the president has delegated such power? If the president has delegated such power, तो उसमें कौन अथॉरिटीज है जो डेलीगेशन ऑफ पावर ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैंड ओवर करेंगे वो अथॉरिटीज को, कि वो ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट में बोला था, वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट में ग्रुप ए पोस्ट को जब अपॉइंटमेंट देंगे वो कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर को डेलीगेशन ऑफ पावर दे सकते हैं अपॉइंटमेंट देने के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, और द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उनको भी दे सकते हैं, सीएजी। ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का कंसर्न मिनिस्टर को दे सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, नहीं तो सीएजी को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। वो क्वेश्चन वही पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मे अपॉइंट ए ग्रुप ए ऑफिसर इफ द प्रेसिडेंट हैज डेलीगेटेड सच पावर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन और रीजन है। असर्शन ए क्या दिया है? ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। रीजन, ग्रुप ए ऑफिसर्स होल्ड सीनियर एंड पॉलिसी लेवल पोजीशंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्चुअली अल्टीमेट अथॉरिटी इज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो ग्रुप ए पोस्ट को एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। यदि अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे वो डेलीगेशन ऑफ पावर एक्चुअली एनी अदर अथॉरिटी को हैंड ओवर करते हैं बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, और ऑल्सो ही मे मेंशन सम स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है। और जो रीजन दिया है कि जो ग्रुप ए ऑफिसर है वो हाईएस्ट सिविलियन पोस्ट है और पॉलिसी मेकिंग पोजीशन से, तो इसीलिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप ए पोस्ट। तो ये दोनों करेक्ट है, एंड जो रीजन है वो इट इज द करेक्ट रीजन ऑफ द असर्शन ए। तो वही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये 6 क्वेश्चंस था रूल 8 के ऊपर। रूल 8 के ऊपर है जो ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं, चाहे सेंट्रल सिविल सर्विसेज चाहे सेंट्रल सिविल पोस्ट। ठीक है, तो चलो रूल 9 को देखेंगे। रूल 9 में ग्रुप बी, सी एंड डी आ जाएगा। तो फर्स्ट देखेंगे, इसमें भी 2 पार्ट्स है। ठीक है, रूल 9 पोजीशन को याद रखिए, इसमें ग्रुप बी, सी एंड डी अपॉइंटमेंट्स टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट। अच्छा, फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है ना, फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्सेप्ट जनरल सेंटर। अच्छा, जनरल सेंट्रल सर्विस भी मैं बताया था आपको, क्लैरिफाई किया था मेरा फर्स्ट पार्ट में। जनरल सेंट्रल सर्विस क्या है? सेंट्रल सिविल पोस्ट है, कुछ सेंट्रल सिविल पोस्ट है। देखिए, सेंट्रल सिविल पोस्ट है, सेंट्रल सिविल पोस्ट है जो बेसिकली दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी सर्विस। कोई दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी सर्विस। सपोज कोई सेक्शन ऑफिसर है, कोई स्टेनोग्राफर है, ओके, सपोज ग्रुप बी पोस्ट आता है सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, वो दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी सर्विस, तो इसलिए सेंट्रल सिविल पोस्ट है।
यहां पर आपको सेंट्रल सिविल पोस्ट नहीं लेना है फर्स्ट पार्ट में, ओनली सेंट्रल सिविल सर्विसेज को लेना है। अच्छा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज आप देखेंगे एक स्टेट सिविल सर्विसेज होता है। स्टेट सिविल सर्विस में पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करता है, नहीं कि दो तहसीलदार है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये सब उनका अपॉइंटमेंट होता है, जो कैडर अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट होता है। सिमिलरली आपका देखा होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप देखिए कुछ पोस्ट है जो ओनली यूनियन में काम करते हैं। जैसे मैं बताया था सेंट्रल सिविल सर्विसेज में ये IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो लोअर रैंक होगा उनको मिलता है। IRS है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, ये भी आ जाएगा कि इंडियन पोस्टल सर्विस, ये भी आ जाएगा, ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विस आ जाएगा, ठीक है, कि इंडियन रेलवे सर्विस आएगा, इंडियन रेलवे सर्विस आएगा, इंडियन रेलवे सर्विस आएगा। तो ये सब क्या है, ओनली यूनियन में काम करेंगे। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में ओनली यूनियन, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मैं बताया इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, कि इंडियन पोस्टल सर्विस, की इंडियन रेलवे सर्विस, ये सब लोअर रैंक, वही सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, और जो बॉटम रैंक में होते हैं ये सब पोस्ट मिलता है। मगर ये सब क्या है, सर्विस ऐसा है, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज है जो यूनियन में काम करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है ना, पोस्ट को नहीं लेना है। जो जनरल सेंट्रल सर्विसेज क्या है, जो सेंट्रल सिविल पोस्ट है। सेंट्रल सिविल पोस्ट क्या है, जो सेक्शन ऑफिसर है, कि चाहे वो स्टेनोग्राफर है, जो BCD में आते हैं, वो कोई दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी सर्विस। समझ में आ गया? तो यहां पर ओनली सेंट्रल सिविल सर्विसेज को देखेंगे। अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप B, C एंड D। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में जो ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, जिसमें क्या होता है, दैट इज मिडिल, क्लरिकल एंड लोअर लेवल स्टाफ are made by specific authorities, listed in the schedule of these rules। ये जो CCA रूल्स 1965 में शेड्यूल में मेंशन है कि ये जो स्पेसिफिक अथॉरिटीज है, शेड्यूल में क्लियरली मेंशन है कि ये स्पेसिफिक अथॉरिटीज ये मिडिल की क्लरिकल एंड लोअर लेवल स्टाफ को अपॉइंटमेंट देंगे। मिडिल में जैसे सेक्शन ऑफिसर है, जो क्लरिकल स्टाफ से, और लोअर लेवल स्टाफ है, तो उनको अपॉइंटमेंट देंगे। तो ओनली ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। यहां पर आपको सेंट्रल सिविल पोस्ट जो है वो जनरल सेंट्रल सर्विस है, ठीक है। तो यहां पर जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कि पोस्टल डिपार्टमेंट है, ठीक है, कि रेलवे है, क्लियर। तो इसमें कि ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट, तो इसमें जो ग्रुप B, C, D पोस्ट होता है, उनका अपॉइंटमेंट कौन देगा? तो उनका अपॉइंटमेंट एक्चुअली मेंशन है स्पेसिफिक अथॉरिटीज listed in the schedule of this rule। तो स्पेसिफिक अथॉरिटीज मेंशन है listed in the schedule of this rule, ठीक है। द शेड्यूल जो CCA रूल्स 1965 का जो शेड्यूल है वो क्लियरली मेंशन किया है अथॉरिटी को, लाइक ए मिनिस्ट्री की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एटसेट्रा इज अलाउड टू अपॉइंट पीपल टू ईच ग्रुप। बट उसको एक्चुअली शेड्यूल ने मेंशन किया है कि ये स्पेसिफिक अथॉरिटीज ये ग्रुप B, C एंड D पोस्ट जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज का है उनको अपॉइंटमेंट देंगे। क्लियर हो गया? तो जैसे फॉर ग्रुप B, सेक्शन ऑफिसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एग्जांपल्स में सेक्शन ऑफिसर, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइट बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ग्रुप C, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, हेड ऑफ ऑफिस में अपॉइंट। ग्रुप D, पियन, अटेंडेंट, समटाइम्स द लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में अपॉइंट। मगर ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में बताया चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेलवे, पोस्टल, ऑडिट, जो ओनली यूनियन में, जो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इनका कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट है और सर्विसेज में आता है, ठीक है। इसमें जो ग्रुप B, C एंड D पोस्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है बेसिकली शेड्यूल में लिस्टेड है कि ये स्पेसिफिक अथॉरिटीज ये पोस्ट को अपॉइंटमेंट देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। और इसमें सेकेंड पार्ट क्या है, जनरल सेंट्रल सर्विस। ये जो जनरल सेंट्रल सर्विस है ये क्या है ना, सिविल पोस्ट है। सेंट्रल, इसको ऑल्टरनेटिवली हम बोलेंगे सेंट्रल सिविल पोस्ट, ठीक है। ये जो पोस्ट है एक्चुअली, दीज पोस्ट एक्चुअली दे डू नॉट बिलोंग टू एनी सर्विस, वो कोई सर्विस के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो वही क्लियरली दे दिया। आप देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है, दीज आर द पोस्ट दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक सर्विस
but are under the central government departments directly. ठीक है, फॉर दीज पोस्ट अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय। अच्छा, इसमें जो ग्रुप बी सी डी पोस्ट होता है उनको कौन अपॉइंटमेंट देगा? यहां पर याद रखिए, जो सिविल पोस्ट होता है, जो सेंट्रल सिविल पोस्ट होता है, जो कोई स्पेसिफिक सर्विस को बिलोंग्स नहीं करता है, तो वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट है, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट थ्रू ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर। यहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी को स्पेसिफाई करेंगे थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर में, तो वही अथॉरिटी एक्चुअली इनको अपॉइंटमेंट देगा। ठीक है, तो यहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी को स्पेसिफाई करेंगे बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर, वही अथॉरिटी अपॉइंटमेंट देगा। अच्छा, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट कुछ ऑर्डर इशू नहीं करेंगे तब क्या होगा ना, जो अथॉरिटीज लिस्टेड है शेड्यूल में वो अपॉइंटमेंट देंगे। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल सिविल पोस्ट है, यहां पर देखिए, ये जो सेंट्रल सिविल पोस्ट है, यहां पर जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी पोस्ट है, इसमें क्या है, जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर वो स्पेसिफाई करेंगे। ये अथॉरिटी, ये ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट जो सिविलियन पोस्ट है उनको अपॉइंटमेंट देंगे। ये सेंट्रल सिविल पोस्ट, ये कोई सर्विस को बिलोंग नहीं करते हैं। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको मेंशन नहीं किए कि ये कोई भी ऑर्डर इशू नहीं किए, तब क्या होगा ना, जो शेड्यूल में, इसी रूल का जो शेड्यूल में एक्चुअली जो अथॉरिटीज लिस्टेड है वो अपॉइंटमेंट देंगे। ठीक है, क्लियर? तो उसमें दिया है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेज ऑल ग्रुप सी, सपोज फॉर एग्जांपल, ऑल ग्रुप सी पोस्ट इन द जनरल सेंट्रल सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल बी फील्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो ऑल ग्रुप सी पोस्ट है उनका अपॉइंटमेंट हेड ऑफ ऑफिस करेगा। इसको कौन स्पेसिफाई कर रहे हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो द हेड ऑफ द ऑफिस बिकम्स द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, यदि कुछ ऑर्डर इशू नहीं करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, तो ऑटोमेटिकली जो अथॉरिटीज है शेड्यूल में, इसी रूल का शेड्यूल में जो स्पेसिफिक अथॉरिटीज है वो अपॉइंटमेंट देंगे। तो इसमें डिफरेंस आपको बहुत याद रखना है। एक है, दो चीज है, एक है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है, एक याद रखिए, एक है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इसमें, और एक है सेंट्रल सिविल पोस्ट। सेंट्रल सिविल पोस्ट इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सिविल पोस्ट, और ऑल्टरनेटिवली इसको बोलेंगे जनरल सेंट्रल सर्विस, जनरल सेंट्रल सर्विस। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये जो है सेकेंड वाला सेंट्रल सिविल पोस्ट और जिसको बोलते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस, ये कोई सर्विस को बिलोंग नहीं करते हैं। और फर्स्ट तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, चाहे आप इनकम टैक्स है, ठीक है, चाहे इनकम टैक्स है कि आपका सपोज रेलवे है कि पोस्टल है, ठीक है, तो ये सब सिविल सर्विसेज है। जैसे आपको बताया था कि रेवेन्यू सर्विस की, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की, सपोज एग्जांपल में दिया था सेक्रेटेरिएट सर्विस। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है सेंट्रल सिविल सर्विसेज वाला है, उसमें जो ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट है उनको कौन अपॉइंटमेंट देगा? उसमें ये जो रूल का जो सीसीए रूल्स 1965 में शेड्यूल में जिस अथॉरिटीज को शेड्यूल लिस्टेड किया है, वही अथॉरिटीज एक्चुअली ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट को अपॉइंटमेंट देंगे। मगर सेकेंड में जो पोस्ट है, जो सेंट्रल सिविल पोस्ट है, उनका अपॉइंटमेंट जब आएगा वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये अथॉरिटी जो सिविल पोस्ट है, सेंट्रल सिविल पोस्ट है, जिसको बोलते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस में, ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट को अपॉइंटमेंट देंगे। और यदि द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज नॉट इशूड एनी ऑर्डर, कोई ऑर्डर इशू नहीं करेंगे, तब ऑटोमेटिकली शेड्यूल में जो अथॉरिटीज लिस्टेड है वो अपॉइंटमेंट देंगे ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट को। तो इसमें दोनों का डिफरेंस आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है रूल 9 में। अच्छा, तो इसमें आप यहां पर एक शॉर्टकट में मैं बता दिया। देखिए, ग्रुप ए जो पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट को ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली अल्टीमेट अथॉरिटी, और वो डेलीगेशन ऑफ पावर और कोई अथॉरिटी को दे सकते हैं। और सेकंड आ गया बी सी डी, ये जो ग्रुप बी सी डी अदर देन जनरल, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज,
ये आ गया सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जो ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट है, इसमें अथॉरिटीज लिस्टेड इन द शेड्यूल। ओके, अथॉरिटीज लिस्टेड इन द शेड्यूल। और यहां पर आप देख लीजिए रिमार्क्स में, डिफेंस सिविलियन पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय एम्पावर्ड ऑफिसर्स। जो डिफेंस में सिविलियन पोस्ट है, जैसे डिफेंस में सिविलियन पोस्ट क्या होता है, अकाउंटेंट की क्लरिकल पोस्ट, तो इट कैन बी फिल्ड बाय एम्पावर्ड ऑफिसर्स। और सेंट्रल सिविल पोस्ट को आ जाएंगे जनरल सेंट्रल सर्विस। जनरल सेंट्रल सर्विस में बताया था कि जो पोस्ट है वो दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी सर्विस। तो इसमें क्या है ना, आज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी को स्पेसिफाई करेंगे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, वही अथॉरिटी अपॉइंटमेंट देगा। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर इशू नहीं करेंगे तब शेड्यूल में जो अथॉरिटीज लिस्टेड है वो अपॉइंटमेंट देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्टकट में मैं रूल 8 रूल 9 में जो ग्रुप ए अपॉइंटमेंट है रूल 8 में, और ग्रुप बी सी एंड डी अपॉइंटमेंट है रूल 9 में, इसको थोड़ा शॉर्टकट में उसको मेंशन कर दिया। अभी थोड़ा कुछ एमसीक्यूज को चलेंगे। एमसीक्यूज में आप देख लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज। यहां पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज अदर देन ग्रुप ए, अदर देन ग्रुप ए मींस ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट। अच्छा, स्टेटमेंट्स क्या है, इसमें हम करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1, अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विस। यहां पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज देखिए, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में बताया था जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, रेलवे है, पोस्टल है। ठीक है, उनका जो ग्रुप की सेक्रेटरिएट सर्विस है। ठीक है, जो पोस्ट बिलोंग्स टू सर्विस, दे विल जो दोज टाइप ऑफ पोस्ट एक्चुअली बिलोंग्स टू स्पेसिफिक सर्विस। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज आर मेड बाय अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ये करेक्ट है। जो भी अथॉरिटीज शेड्यूल में स्पेसिफाइड है वो एक्चुअली अपॉइंटमेंट देंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज में, जो पोस्ट बिलोंग्स टू स्पेसिफिक सर्विस। फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सिविलियन पोस्ट इन डिफेंस सर्विसेज, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सिविलियन पोस्ट इन डिफेंस सर्विसेज, ऑफिसर्स एम्पावर्ड बाय द मेन अथॉरिटी कैन ऑल्सो मेक अपॉइंटमेंट्स। इसमें एक्चुअली जो भी अथॉरिटीज को जो सिविलियन पोस्ट है डिफेंस सर्विसेज में, मैं बताया था आपको, चाहे जो क्लरिकल पोस्ट होता है, तो इसमें जो जिस ऑफिसर को एक्चुअली एम्पावर किया जाएगा वो अथॉरिटी अपॉइंटमेंट देगा, ये भी ठीक है। द प्रेसिडेंट पर्सनली मेक्स ऑल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी अपॉइंटमेंट्स, पर्सनली कुछ अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में स्पेसिफाई करते हैं कि ये अथॉरिटी एक्चुअली अपॉइंटमेंट देगा। द प्रेसिडेंट पर्सनली मेक्स ऑल ग्रुप, ये गलत है, पर्सनली कुछ अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऊपर पूछा है, तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, कोई इट मींस कोई अथॉरिटी को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। इसमें क्लियरली है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो पोस्ट एक्चुअली सर्विसेज को बिलोंग करता है, उसमें जो ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट होता है, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, जो इसी रूल का शेड्यूल में जो अथॉरिटीज लिस्टेड होगा वही अथॉरिटीज एक्चुअली अपॉइंटमेंट देंगे। तो उसमें फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। क्लियर, तो यहां पर हम देख लेंगे ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, रिगार्डिंग सीसीए रूल्स 9(2) मीन्स जनरल सेंट्रल सर्विस, जो सेंट्रल सिविल पोस्ट होता है। Which of the following is true for appointments to post in the general central service? तो जनरल सेंट्रल सर्विस में सेंट्रल सिविल पोस्ट, सेंट्रल, इसको याद रखना है, सेंट्रल सिविल पोस्ट। एक्चुअली ये जो पोस्ट होता है, जो भी पोस्ट रहेगा, दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी सर्विस, उनका कोई सर्विस के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, तो वही है जनरल सेंट्रल सर्विस। तो जनरल सेंट्रल सर्विस मीन्स सेंट्रल सिविल पोस्ट। ठीक है, उसमें द प्रेसिडेंट स्पेसिफाइज द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स, ये करेक्ट है। नो सच ऑर्डर एग्जिस्ट, अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय अथॉरिटीज मेंशन्ड इन द शेड्यूल, ये करेक्ट है। ओनली यूपीएससी हैज द पावर टू अपॉइंट टू दिस पोस्ट, ये गलत है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है मींस ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो सेंट्रल सिविल पोस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं
जनरल सेंट्रल सर्विस, इसमें जो ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट होता है उसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में स्पेसिफाई करेंगे कि ये अथॉरिटी ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट को अपॉइंटमेंट देगा। यदि कोई वो ऑर्डर इशू नहीं करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट, तब जो इसी रूल का जो शेड्यूल में जो भी अथॉरिटीज लिस्टेड है वो अपॉइंटमेंट देंगे। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वही 9(2) है, 9(2) जो है वो जनरल सेंट्रल सर्विस है, और रूल 9(1) जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statements about CCA rules 9(1) is or are correct? 9(1) means actually central civil services, central civil services, ओके, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऊपर है। अच्छा, इट अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग जनरल सेंट्रल सर्विस, ये गलत है। ओनली आता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जनरल सेंट्रल सर्विस नहीं आएगा, क्योंकि जनरल सेंट्रल सर्विस जो है वो सेंट्रल सिविल पोस्ट है। जो सेंट्रल सिविल पोस्ट दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी सर्विस, ये गलत है। इट अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल सिविल सर्विसेज अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विस, ये करेक्ट है। जो 9 सबसेक्शन 1 है रूल का वो ओनली सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, ठीक है, अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विस। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ये करेक्ट है, क्योंकि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है उसमें जो ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट को जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, एक्चुअली इसी रूल का जो सीसीए रूल्स 1965 में जो शेड्यूल है उसमें लिस्टेड है कि ये अथॉरिटीज एक्चुअली अपॉइंटमेंट देंगे। तो उसमें क्लियर हो गया। करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट पूछा है तो 2 और 3, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मे बी एम्पावर्ड टू अपॉइंट ग्रुप सी एंड डी सिविलियन पोस्ट इन डिफेंस सर्विसेज। तो सिविलियन पोस्ट मींस बेसिकली क्लरिकल पोस्ट है डिफेंस सर्विसेज में। मैं इसके ऊपर भी बताया था कि जिस अथॉरिटी को एक्चुअली एम्पावर किया जाएगा वही अथॉरिटी एक्चुअली ग्रुप सी एंड डी जो सिविलियन पोस्ट होता है डिफेंस सर्विसेज में उनको अपॉइंटमेंट देगा। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑफिसर्स एम्पावर्ड बाय अथॉरिटीज मेंशन्ड इन द शेड्यूल, ये करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देखेंगे। इफ द प्रेसिडेंट हैज नॉट इशूड ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर फॉर जनरल सेंट्रल सर्विस पोस्ट द शेड्यूल अप्लाइज, ये करेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल सिविल जनरल सेंट्रल सर्विस, तो जनरल सेंट्रल आप देखिए रूल 9(2), ये जनरल सेंट्रल सर्विस जो सेंट्रल सिविल पोस्ट होता है उसमें एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये अथॉरिटी एक्चुअली ये ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट को अपॉइंटमेंट देगा। ठीक है, करेक्ट है। फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज ऑलवेज यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ऑफिसर्स एम्पावर्ड बाय अथॉरिटीज में अपॉइंट टू सिविलियन डिफेंस पोस्ट अंडर ग्रुप सी एंड डी। सिविलियन डिफेंस पोस्ट जो क्लरिकल पोस्ट होता है डिफेंस सर्विसेज में, उनको जो ऑफिसर्स को एम्पावर किया जाएगा वही अथॉरिटी अपॉइंटमेंट देंगे, ये भी ठीक है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी 2 स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट वन, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो अभी रूल 10 को चलेंगे, सस्पेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसेक्शन एक्चुअली है 7 सबसेक्शन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 10 रूल पोजीशन को आप याद कीजिए फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सस्पेंशन का डेफिनेशन दिया है, अब देखिए सपोज सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। मींस टेम्पोररीली वेयरिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज while retaining his service status, he is still a government employee but not allowed to work। इसमें क्या है, टेम्पोररी सस्पेंशन क्या है, टेम्पोररी पीरियड के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रिवेंट किया जाता है कि आप कोई भी ऑफिशियल ड्यूटीज में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। ठीक है, उनको टेम्पोररी पीरियड के लिए प्रिवेंट किया जाता है।
मगर वो टेम्पररी पीरियड के लिए एक्चुअली उनको डिवेयर किया जाता है, मगर ही इज स्टिल अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आप ये नहीं सोचेंगे कि सस्पेंड हो गया तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। अरे भाई वैसा नहीं है, टेम्पररी पीरियड के लिए he must be devoured, and any official duties cannot be assigned to the suspended officers. Okay, it means any type of work actually is not given to the suspended officers. Temporarily इसको बोलते हैं temporarily wearing a government servant or prevent a government servant to do some official works. ठीक है, ये डेफिनेशन है। ये क्यों किया जाता है कि इसको हम पनिशमेंट नहीं मानेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट ए पनिशमेंट। कभी कभी हम सोचते हैं कि सस्पेंशन एक पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट नहीं है। एक टेम्पररी पीरियड के लिए उनको उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है कि आपको ऑफिशियल ड्यूटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, ये नहीं है कि वो वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो ये एक पनिशमेंट नहीं है। ये क्या है, प्रिकॉशन है कि इनको टेम्पररी पीरियड के लिए उनको बेसिकली जो सस्पेंडेड ऑफिशियल है उसको प्रिवेंट किया जाता है कि वो एक्चुअली कोई ऑफिशियल वर्क नहीं करेगा, कि जो भी इंक्वायरी चलेगा उसमें वो टैंपरिंग है कि वो इंटरफियर नहीं करेगा। इसलिए उसको ऑफिशियल ड्यूटीज में इन्वॉल्व होने के लिए फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली ही इज वेयर्ड एंड बेसिकली ही इज प्रिवेंटेड टू डू ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, कुछ समय के लिए उसको ऑफिशियल ड्यूटीज असाइन नहीं किया जाता है टेम्पररी पीरियड के लिए। ये रीजन है, इट इज नॉट ए पनिशमेंट। ओके, कि वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि वो ऑफिशियल ड्यूटीज में इन्वॉल्व होगा तो जो इंक्वायरी होगा उसमें टैंपरिंग कर सकता है, कि उसमें इंटरवेन कर सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कौन करेगा। हु कैन सस्पेंड ए गवर्नमेंट सर्वेंट? गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कौन करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, जो अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सुपरियर है, any authority to is the appointing authority subordinate, it means superior authority of appointing authority, superior officer of इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको याद रखिए, superior officer of appointing authority, superior officer of appointing authority, appointing authority के ऊपर जो ऑफिसर है वो सस्पेंड कर सकता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये चार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पावर है। सेकेंड वन, सुपरियर ऑफिसर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर जो ऑफिसर्स है वो कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर सकता है, और यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोई अथॉरिटी को एम्पावर करते हैं, कोई अथॉरिटी को पावर देते हैं, वो भी कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही अथॉरिटीज है, जो अथॉरिटीज सस्पेंड करेंगे वही अथॉरिटीज एक्चुअली सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसको रिवोक कर सकते हैं, यही अथॉरिटीज। जो अथॉरिटीज, याद रखिए, सपोज आपका सस्पेंशन को मॉडिफाई की रिवोक की रिव्यू कौन करेगा? यही अथॉरिटीज करेंगे। जो अथॉरिटी आपको सस्पेंड करेगा वही अथॉरिटीज करेंगे, इन्हीं अदर अथॉरिटी के पास पावर नहीं है। यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंड करते हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पावर है, वो सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकता है, वो सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है, और वो सस्पेंशन को रिव्यू कर सकता है। यदि एनी सुपरियर ऑफिसर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो आपको सस्पेंड करता है तो उन्हीं के पास पावर है कि वो एक्चुअली मॉडिफाई कर सकते हैं सस्पेंशन को, रिवोक कर सकते हैं, और वो रिव्यू कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी, याद रखिए यहां पर कॉमन है, जो अथॉरिटी सस्पेंड करेगा उसी के पास पावर रहेगा। ओके, सस्पेंशन को रिवोक करना, सस्पेंशन को मॉडिफाई करना, और सस्पेंशन को रिव्यू करना। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, कुछ कंडीशन है यहां पर क्लियरली मेंशन है कि एनी ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी सस्पेंडेड, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी सस्पेंडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, एक क्वेश्चन आएगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी सस्पेंडेड। कौन सा यह सर्कमस्टांसेस है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया जाएगा? एक है जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कॉन्टेम्पलेटेड, माने इट मींस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, इनिशिएट नहीं हुआ है, इनिशिएट होगा। ओके, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कुछ चार्ज लगा है, तो इनिशियल जो प्राइमा फासी फैक्ट है, तो इनिशियल ट्रायल में ऐसा मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर जो चार्ज लगा है उसके ऊपर प्रोसीडिंग होना चाहिए। तो कंटेम्पलेटेड मींस
प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा कि प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है, तो उस केस में द चार्ज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिस गवर्नमेंट ऑफिसर को के ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है। तो बहुत फास्ट इंपॉर्टेंट है, यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, ओके, तब वो चार्ज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सेकंड है कि जो अथॉरिटीज है जिसके पास एक्चुअली सस्पेंशन पावर है, दोज अथॉरिटीज हैविंग पावर टू सस्पेंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो अथॉरिटीज के पास पावर है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को सस्पेंड कर सकता है। मैं ऊपर में बताया हु आर द अथॉरिटीज टू सस्पेंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऊपर में बताया, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो अथॉरिटीज डिटेक्ट किया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसर, वो इसका जो वर्क है वो अगेंस्ट ऑफ द स्टेट है। देखिए, when the authorities believes that the employee has engaged in activities prejudicial to the security of the state, यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज वो डिटेक्ट करेंगे कि जो कंसर्न एम्प्लॉय है वो ऐसा कुछ वार किया है जो इट इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो उस केस में उसको इमीडिएटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सस्पेंड कर देगा, ठीक है। और थर्ड है, यदि क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि क्रिमिनल इंक्वायरी चल रहा है और भी कोई ट्रायल चल रहा है, क्रिमिनल रिलेटेड ट्रायल, तब उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज है जो सिचुएशंस में, तीनों सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, नहीं हुआ है, इनिशिएट होगा कि पेंडिंग है, वहां पर चार्ज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा जिसके ऊपर चार्ज लगा है। सेकेंड है, यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को कुछ इंफॉर्मेशन मिला है कि कंसर्न एम्प्लॉई जो काम किया है वो इट इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तब उस केस में इमीडिएटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देगा। थर्ड है, यदि क्रिमिनल केस वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा कुछ क्रिमिनल केस का चार्ज लगा है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि इसका क्रिमिनल केस का इंक्वायरी चल रहा है, चाहे डिपार्टमेंट की चाहे कोर्ट में, और ऐसा कुछ ट्रायल, क्रिमिनल केस रिलेटेड ट्रायल चल रहा है, तो उस केस में जो कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर चार्ज लगा है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये तीनों है सर्कमस्टांसेस, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहां पर आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट में देख लीजिए, इफ द ऑर्डर ऑफ द सस्पेंशन इज मेड बाय एनी अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अभी हम देखा था कि who are the authorities have power to suspend the government employees? एक है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एक है सुपरियर ऑफिसर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एक है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और एक है ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जिस अथॉरिटी को पावर देते हैं, ओके, कोई कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड करने के लिए। तो ये है, तो मगर कभी कभी क्या है, ऐसा एक रैंक है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे है। यहां पर ये तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उनका नीचे में एक अथॉरिटी है, ओके, तो नीचे में एक अथॉरिटी है, यदि ये सस्पेंड कर दिया, वही दिया है, इफ द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज मेड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लोअर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तब वो, सपोज ये जो अथॉरिटी है, यहां पर सपोज ये अथॉरिटी एम है, सपोज मेरा एग्जांपल में, इमेजिनरी एग्जांपल में अथॉरिटी एम है, इसका जो रैंक है, अथॉरिटी एम का रैंक है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे में है। यदि अथॉरिटी एम यहां सस्पेंड कर दे, सस्पेंड ऑर्डर इश्यू कर देता है, तो इमीडिएटली वो एक रिपोर्ट दे देगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, क्योंकि आपको मालूम होगा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का ऊपर में है, सुपरियर ऑफिसर है, वो कर सकते हैं, मगर लोअर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का लोअर ऑफिसर है वो नहीं कर सकते। और यदि भी करते हैं, यहां पर एक रूल है, नोट में याद रखिए, क्वेश्चन आता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नीचे में, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में अथॉरिटी एम है, जिसका रैंक है वो बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और यदि वो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू करता है तो उस केस में वो एक रिपोर्ट देगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट वन हम देखेंगे ऑटोमेटिक सस्पेंशन, जिसको बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन, क्लियर, ऑटोमेटिक सस्पेंशन जिसको बोलते हैं हम डीम्ड सस्पेंशन। तो क्या सर्कमस्टांसेस है जो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा, जिसको हम डीम्ड सस्पेंशन बोलते हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है? तो यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, इफ द कंसर्न एम्प्लॉय इज डिटेन्ड इन कस्टडी
फॉर मोर देन 48 आवर्स, ये याद रखिए, यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय को कस्टडी में मोर देन 48 आवर्स रखा जाता है, वेदर फॉर ए क्रिमिनल चार्ज और एनी अदर चार्ज, तब उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मान लिया जाएगा। क्लियर? इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रिटेन्ड इन कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स, ओके, एनी क्रिमिनल चार्ज है कि और एनी अदर चार्ज है, तब मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली वो सस्पेंडेड है। नेक्स्ट वन, इफ ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट, अल्टीमेटली वो कन्विक्टेड हुआ, कोर्ट में कन्विक्टेड हुआ, कन्विक्शन के बाद उसका इंप्रिजनमेंट हो गया, सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स, ओके, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स, कन्विक्शन होने के बाद जो उसको इंप्रिजनमेंट मिला वो मोर देन 48 आवर्स हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली उसको डिसमिस, रिमूव और कंपल्सरी रिटायर्ड नहीं किया गया। ठीक है, कन्विक्टेड हो गया और कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज इंप्रिजन्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स, उसके बाद इमीडिएटली उसको डिसमिस, रिमूव और कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है उसको नहीं दिया गया, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है। तो मोर देन 48 आवर्स यहां पर आपको फोकस करना है। ठीक है, एक है डिटेन्ड इन द कस्टडी, इसको मैं एनसर्कल कर दिया, ठीक है, और एक है कन्विक्टेड है और इंप्रिजनमेंट है फॉर मोर देन 48 आवर्स, ओके, तो ये दो केस में, ठीक है, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मान दिया जाएगा। अच्छा, जो सेकेंड केस है यहां पर, ये जो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस केस में, जो इंप्रिजनमेंट केस में, ये यहां पर 48 आवर्स हम कैसे मानेंगे, ये जो 48 आवर्स मानेंगे, जैसे कन्विक्टेड हो गया, कन्विक्टेड होने के बाद जब इंप्रिजनमेंट, जिस डेट में उसका इंप्रिजनमेंट इफेक्टिव हुआ, वहां से हम 48 आवर्स को काउंट करेंगे। कन्विक्शन डेट, एक डेट में कन्विक्शन डिक्लेयर होता है और एक डेट में उसको इंप्रिजनमेंट होता है, तो जिस डेट में एक्चुअली उसका इंप्रिजनमेंट इफेक्टिव हुआ, उसी से हम 48 आवर्स को काउंट करेंगे। वही दिया है, द 48 आवर्स आर काउंटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंप्रिजनमेंट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, याद रखिए, द 48 आवर्स आर काउंटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंप्रिजनमेंट आफ्टर कन्विक्शन। यदि पार्ट्स में इंटरमिटेंट, सपोज पार्ट्स में इंप्रिजनमेंट होता है, कभी कभी वो जेल चला गया, फिर निकल आया, फिर गया, फिर आया, तो उसमें क्या है, जब सबको मिला के मोर देन 48 आवर्स हो जाएगा, दोज पीरियड्स आर एडेड, इंटरमीडिएट दोज पीरियड्स आर, अब हमको ऐड करेंगे। कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन होने के बाद जेल गया, फिर बाहर आ गया, फिर गया, फिर बाहर आ गया, ये टोटल पीरियड को हम ऐड करेंगे, यदि मोर देन 48 आवर्स है हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वो सस्पेंडेड है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कन्विक्टेड एंड इंप्रिजनमेंट, मगर जो मोर देन इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन 48 आवर्स, तो ये जो 48 आवर्स को, जो सेकेंड केस में यहां पे 48 आवर्स को हम कैसे काउंट करेंगे ना, वो इफेक्टिव फ्रॉम इंप्रिजनमेंट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्टेड एंड जिस डेट में उसका इंप्रिजनमेंट इफेक्टिव हुआ, वहां से हम 48 आवर्स काउंट करेंगे। यदि वो 48 आवर्स क्रॉस किया, इंप्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 48 आवर्स, तब उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हम मान लेंगे। और यदि इंप्रिजनमेंट वो पार्ट वाइज होता है, इंटरमिटेंट होता है, जाता है जेल को, फिर आ जाता है, जाता है, आ जाता है, तो उसे टोटल पीरियड को काउंट करेंगे। यदि इंप्रिजनमेंट टोटल पीरियड काउंट करने के बाद एक्सीडिंग 48 आवर्स, तब ऑटोमेटिकली मान हम लेंगे कि वो सस्पेंडेड है। तो इसको डीम्ड सस्पेंशन व ऑटोमेटिक सस्पेंशन बोलते हैं। तो इसको आपको बढ़िया बढ़िया पॉइंट से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, थोड़ा आपको क्लैरिटी, कंटेंट के ऊपर क्लैरिटी होना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, चाहे डिस्क्रिप्टिव, आराम से आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, ये वो फर्स्ट वन एक्चुअली सर्कमस्टांसेस फॉर सस्पेंशन, वो 10(1) था, 10 सबसेक्शन 1 था, डीम्ड सस्पेंशन 10 सबसेक्शन 2 था, ये आ गया 10 सबसेक्शन 3। इसमें क्या है ना, व्हेन डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट इज सेट असाइड इन अपील और रिव्यू। सपोज अपील रिव्यू में जो कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया था जॉब से, कि रिमूव कर दिया गया था, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया गया था, उसको सेट असाइड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो डिसमिसल है, कि रिमूव है, कि उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया था, मगर वो अपील किया कि उसका केस को रिव्यू किया गया और वो जो डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट जो मेजर पेनल्टी लगा था, उसको सेट असाइड कर दिया गया। ठीक है, उसको हटा दिया गया। इस केस में क्या होगा ना, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट
who was dismissed, removed और compulsorily retired is reinstated. अगेन उसको रीइंस्टेट कर दिया गया, क्योंकि वो डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट जो उसको डिसमिस कर दिया गया था, अभी उसको डिसमिस को अपील और रिव्यू में हटा दिया गया। कि सपोज रिमूव कर दिया गया था, रिमूवल को हटा दिया गया अपील और रिव्यू में, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया था, उसको रिमूव कर दिया गया, और वो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट रीइंस्टेट हो गया। तो बिकॉज द पेनाल्टी वॉज सेट असाइड, जो पेनाल्टी लगा था मेजर पेनाल्टी, उसको तो सेट असाइड कर दिया गया ऑन अपील और रिव्यू। तो एंड द केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी, और बोल दिया गया कि वो केस, जिस केस में उसको रिमूव किया गया था, कि डिसमिस किया गया था, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया था, उसको और एक बार इंक्वायरी किया जाए। तो ये जजमेंट आया, ठीक है, चाहे डिपार्टमेंट हो कि चाहे कोर्ट हो। ये डिपार्टमेंट रिलेटेड है, ये कोर्ट रिलेटेड नहीं, ये डिपार्टमेंट रिलेटेड है, 10 सबसेक्शन 3, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ना, उसको अगेन सस्पेंशन में रखा जाएगा ऑटोमेटिकली, ही विल बी डीम्ड टू हैव बीन अंडर सस्पेंशन। कौन सा पीरियड में सस्पेंशन किया जाएगा ना, जिस डेट में उसको ऑर्डर मिला था, डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, उसी डेट से उसको मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंडेड है। ओके, यहां पर क्लियरली दे दिया, फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल डिसमिसल, रिमूवल और रिटायरमेंट ऑनटिल फर्दर ऑर्डर्स। क्लियर। यदि अपील रिव्यू में, डिपार्टमेंट में अपील रिव्यू में उसको एक कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया गया था कोई केस में, और अपील रिव्यू में उसको फिर रीइंस्टेट कर दिया गया, जो डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट लगा था उसको हटा दिया गया, और फर्दर इंक्वायरी के लिए डिसीजन लिया गया। तो इस केस में क्या होगा ना, जो ऑर्डर मिला था, जो ओरिजिनल ऑर्डर मिला था जिस डेट में, जो डिसमिसल ऑर्डर की, रिमूवल ऑर्डर की, कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर जिस डेट में मिला था, वहां से ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे कि वो उसी डेट से सस्पेंडेड है टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये अनटिल फर्दर ऑर्डर्स को भी याद रखना है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि जिस डेट में उसको डिसमिसल ऑर्डर मिला था, वहां से वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। अनटिल फर्दर ऑर्डर्स को आपको ध्यान देना है। तो 10 सबसेक्शन 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। अनटिल फर्दर ऑर्डर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अनटिल, फिर फर्दर ऑर्डर तक हम वेट करेंगे, ठीक है। तो उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मान लिया जाएगा कि जिस डेट में उसको रिमूवल ऑर्डर मिला था, कि जिस डेट में उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर मिला था, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड है। और एक कोर्ट रिलेटेड है, आप देख लीजिए, व्हेन पेनाल्टी सेट असाइड बाय ए कोर्ट। तो ये जो है, ये है रूल 10 सबसेक्शन 4, ठीक है। व्हेन पेनाल्टी सेट असाइड बाय ए कोर्ट, इफ, यदि कोर्ट सेट असाइड कर दिया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया गया था, कि डिसमिसल कर दिया गया था जॉब से, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया गया था, अभी कोर्ट क्या किया, उसको सेट असाइड कर दिया और फ्रेश इंक्वायरी के लिए बोल दिया कि इसको फ्रेश इंक्वायरी किया जाए। टेक्निकल ग्राउंड में वो बोल दिया उसको फ्रेश इंक्वायरी किया जाए, क्योंकि उसमें वो क्या किया, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। कोर्ट इतना मेरिट, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, इसको याद रखना है, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, टेक्निकल ग्राउंड्स में ऑर्डर दे दिया कि उसका फ्रेश इंक्वायरी हो, इसको जो डिसमिसल की, रिमूवल और जो कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया गया था उसको हटा दिया जाए और फ्रेश इंक्वायरी किया जाए। अच्छा, फ्रेश इंक्वायरी कब होगा ना, जब टेक्निकल ग्राउंड्स में कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि उसके ऊपर जो मेजर पेनल्टी है सब लगा था, डिसमिसल, रिमूवल, उसको हटा दिया जाए और फ्रेश इंक्वायरी किया जाए, क्योंकि वहां पर कोर्ट इतना अंदर नहीं गया, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, ठीक है। ये यहां पर याद रखना है, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या किया जाएगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन माना जाएगा। किस डेट से ना, जिस डेट में उसको डिसमिसल ऑर्डर मिला था, जिस डेट में उसको रिमूवल ऑर्डर मिला था, जो ओरिजिनल डेट था डिसमिसल ऑर्डर का, कि रिमूवल ऑर्डर का, जो जिस डेट में उसको डिसमिसल ऑर्डर की, रिमूवल ऑर्डर मिला था, तो उसी डेट से ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंडेड है टिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। द एम्प्लॉई इज डीम्ड सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। ओरिजिनल ऑर्डर क्या है, जिस ओरिजिनल ऑर्डर में आपको सस्पेंड किया था, जिस ओरिजिनल ऑर्डर में आपको डिसमिस किया गया था, जिस ओरिजिनल ऑर्डर में आपको रिमूव किया गया था, उसी डेट से हम मान लेंगे कि वो सस्पेंडेड है अनटिल फर्दर ऑर्डर्स,
ठीक है, मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट टेक्निकल ग्राउंड में डिसीजन लेता है और फ्रेश इंक्वायरी के लिए बोलता है, और इसमें एक सेंटेंस आता है, विदाउट कोर्ट एक्चुअली विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि इसका फ्रेश इंक्वायरी हो, और उसके ऊपर जो मेजर पेनल्टी लगा था, उसका जो जॉब चला गया था, उसको जॉब से हटा दिया गया था, उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए और फ्रेश इंक्वायरी किया जाए। ठीक है, और वहां पे केस कहां कब से एक्चुअली सस्पेंशन ऑर्डर को इफेक्टिव किया जाएगा ना, जिस डेट में उसको रिमूवल ऑर्डर मिला था, जिस डेट में उसको डिसमिसल ऑर्डर मिला था, वहां से ही सस्पेंशन को इफेक्टिव किया जाएगा अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, चलो, ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सस्पेंशन। क्या सस्पेंशन तो एक टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है, तो उसका ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूएशन कब तक रहेगा, तो ये अंडर सेक्शन 10(5) है, सब सेक्शन 5। अच्छा, ये सस्पेंशन ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स अंटिल ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स अंटिल इट इज मॉडिफाइड और रिवोक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपको मैं बताया था कि जो अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, उसी अथॉरिटी के पास पावर है कि वो सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकता है और वो सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है। इसको याद रखना है। तो सस्पेंशन ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स अंटिल इट इज मॉडिफाइड, ये भी एक सेंटेंस है, अंटिल इट इज मॉडिफाइड और रिवोक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है ना, जो अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया था। ठीक है, अच्छा, इफ अनदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, सस्पेंडेड, आप कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया गया है, इफ अनदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट्स व्हाइल द एम्प्लॉय इज ऑलरेडी सस्पेंडेड, कंसर्न एम्प्लॉय इज ऑलरेडी सस्पेंडेड बट अनदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, फिर इसके ऊपर और एक चार्ज लगा और अनदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, द अथॉरिटी में ऑर्डर कंटिन्यूएशन ऑफ सस्पेंशन टिल ऑल प्रोसीडिंग्स आर ओवर, मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि ऐसे तो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंडेड है, और फिर उसके ऊपर न्यू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ और कोई दूसरा चार्ज उसके ऊपर लगा और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, तो उसमें क्या होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर दे देगा कि जितना भी प्रोसीडिंग चल रहा है, चाहे एक प्रोसीडिंग की, 2 की 3 जो प्रोसीडिंग चल रहा है, जब तक पूरा ओवर ना हो जाए तब तक वो सस्पेंशन में रहेगा, और वो रिकॉर्ड रीजन्स भी मेंशन करेगा कि इसी रीजन के वजह से, ठीक है, उसका सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक प्रोसीडिंग में वो सस्पेंडेड था, अनदर प्रोसीडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, तो उस केस में, इस तरीके का केस में इफ 2-3 प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होता है, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑर्डर दे देगा कि जब तक जो भी प्रोसीडिंग चल रहा है, जब तक वो पूरा ओवर ना हो जाए, जब तक वो पूरा टर्मिनेशन ना हो जाए, तब तक सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा, और वो एक रीजन भी मेंशन करेगा, रिकॉर्ड में रीजन मेंशन करेगा। ठीक है, लास्ट वन जो है, सस्पेंशन कैन बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड एनी टाइम बाय द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था कि जो अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा, उसी के पास पावर है, उसी के पास पावर है कि वो सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकता है और वो सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है और वही सस्पेंशन को रिव्यू कर सकता है। तो मॉडिफिकेशन, रिवोक एंड रिव्यू वही अथॉरिटी के पास होता है जो अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सस्पेंशन। सेंटेंस को याद रखिए, ये पर्टिकुलर सेंटेंस आजकल करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कब रिव्यू होगा, जो कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया है, कब रिव्यू होगा ना, एवरी सस्पेंशन चाहे मेड और डीम्ड मस्ट बी रिव्यूड विद इन 90 डेज ऑफ इफेक्टिव डेट। जिस डेट में सस्पेंशन इफेक्टिव हुआ उसका 90 डेज के अंदर रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू कौन करेगा ना, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया था। तो जिस डेट में सस्पेंशन इफेक्टिव हुआ था वहीं से आप काउंट कर लो, विद इन 90 डेज उसका रिव्यू होगा, एक रिव्यू कमिटी बनेगा, द रिव्यू कमिटी। अच्छा, रिव्यू कमिटी का हेड कौन रहेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया था। तो रिव्यू अथॉरिटी एग्जामाइन्स द केस and recommends whether to extend or revoke the suspension. तो रिव्यू कमिटी within 90 days, रिव्यू कमिटी एक्चुअली एग्जामाइन करेगा कि
सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जाए ना सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाए। रिवोक मीन्स उसको हटा दिया जाए, ठीक है। और यदि एक्सटेंशन होगा, ईच एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 180 डेज। यदि रिव्यू कमिटी एग्जामाइन करके बोलता है कि सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जाएगा तो ईच एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 180 डेज एट ए टाइम। तो ये तीनों चीज आप याद रखिए, क्वेश्चन आता है। तो जिस डेट में सस्पेंशन इफेक्टिव हुआ उसका 90 डेज के अंदर रिव्यू होगा, तो रिव्यू कमिटी होगा, रिव्यू कमिटी एग्जामाइन करेगा और वो एक सस्पेंशन को एक्सटेंड कर सकता है और रिवोक कर सकता है। और यदि एक्सटेंड होगा तो ईच एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 180 डेज एट ए टाइम, ठीक है। ये जो है रूल 10 सबसेक्शन 6, ठीक है। रूल पोजीशन को भी याद रखिए। और इसका जो लास्ट वन है, मैं बोला था उसका 7 सबसेक्शन से रूल 10। रूल 10 बेसिकली सस्पेंशन के ऊपर है। ऑटोमेटिक एक्सपायरी इफ नॉट रिव्यूड। अच्छा, 90 डेज के अंदर रिव्यू नहीं होगा, ओके, 90 डेज खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि जो सस्पेंशन है वो इनवैलिड हो गया, ठीक है, क्योंकि 90 डेज के अंदर रिव्यू होना चाहिए। 90 डेज के अंदर रिव्यू नहीं हुआ, 90 डेज खत्म हो गया तो उसके बाद मान लिया जाएगा कि सस्पेंशन इनवैलिड है। तो इफ सस्पेंशन is not reviewed and extended within 90 days, it automatically lapses. Automatically lapses means becomes invalid. क्लियर। मगर उसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शंस को याद रखिए। यदि डीम्ड सस्पेंशन है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, जैसे ऑटोमेटिकली सस्पेंशन कब होता है ना, एक है कस्टडी। आपका सपोज कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय कस्टडी में है मोर देन 48 आवर्स, है ना, मोर देन कस्टडी में मोर देन 48 आवर्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंशन मान लिया जाएगा, जो सबसेक्शन 10(2) बोल रहा है, ठीक है। सबसेक्शन 10(2) बोल रहा है डीम्ड सस्पेंशन। तो उस केस में क्या होगा, जब तक वो जो 90 डेज हम काउंट करेंगे, रिव्यू विद इन, हम बोल रहे हैं ना रिव्यू करेंगे विद इन 90 डेज, तो इस केस में जब डीम्ड सस्पेंशन है, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन है क्योंकि डिटेंशन के वजह से, तो उसमें 90 डेज को हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो रिव्यू आफ्टर 90 डेज इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द पर्सन इज स्टिल अंडर। यदि सेम कस्टडी में है, जब तक वो कस्टडी में है तब तक तो वो तो डीम्ड सस्पेंशन है, मगर हम रिव्यू आफ्टर 90 डेज हम नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे ना, जब वो डिटेंशन से रिलीज हो गया। देखिए यहां पर ऑप्शन है द 90 डे पीरियड विल स्टार्ट आफ्टर, एक ऑप्शन है आफ्टर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन। जब वो डिटेंशन से रिलीज हो गया, जिस डेट में वो डिटेंशन से रिलीज हो गया वहां से हम 90 डेज को काउंट करना शुरू करेंगे। और यदि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि मेरा रिलीज हो गया, जो कस्टडी में मैं था, मैं अभी कस्टडी से रिलीज हो गया, तो उसमें जो लेटर विच एवर इज लेटर, वहां से हम 90 डेज एक्चुअली काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 90 डेज जो रिव्यू विद इन 90 डेज जो रिव्यू होगा, जो डीम्ड सस्पेंशन केस में जब तक वो डिटेंशन है तब तक वो 90 डेज हम काउंट नहीं करेंगे। तो उसमें दो आइदर और, जब वो डिटेंशन से रिलीज हो जाएगा, जिस डेट में रिलीज होगा, इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज, ठीक है, 90 डेज काउंट होगा। और यदि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है कि इसी डेट में मेरा रिलीज हो गया, वहां से हम 90 डेज हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो आइदर और, रिलीज फ्रॉम डिटेंशन और व्हेन the charge officer informed to the appointing authority in regarding to the release, तो उसमें whichever is later, ठीक है। क्लियर। ये 7 सबसेक्शंस था। अभी हम एमसीक्यू को चलेंगे। सिचुएशंस आप देख लीजिए, यहां पर शॉर्टकट में मैं सिचुएशन को दे दिया। डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग कंटेम्पलेटेड, सस्पेंड होगा। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अभी सपोज स्टार्ट होगा, कंटेम्पलेटेड मीन स्टार्ट होगा कि अभी पेंडिंग है, सस्पेंड होगा। क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल स्टेज में है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि इंक्वायरी में, सस्पेंड होगा। डिटेंशन कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स, ऑटोमेटिकली ये डीम्ड सस्पेंशन, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होगा। कन्विक्टेड हो गए, कन्विक्शन के बाद इंप्रिजनमेंट हुआ, यदि इंप्रिजनमेंट मोर देन 48 आवर्स ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होगा। मगर यहां पर जो 48 आवर्स को हम काउंट करेंगे फ्रॉम द इफेक्टिव ऑफ इंप्रिजन, जिस डेट में उसको इंप्रिजनमेंट हुआ, कन्विक्टेड हुआ, कन्विक्टेड के बाद जिस डेट में वो उसको उसका इंप्रिजनमेंट इफेक्टिव हुआ, वहां से हम 48 आवर्स काउंट करेंगे, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन।
पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया, केस रीओपन, पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया और बोल दिया गया कि फ्रेश इंक्वायरी होगा। तो जिस डेट में उसको ओरिजिनल ऑर्डर मिला था डिसमिसल की, रिमूवल की, कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर, वहां से उसी डेट से उसका सस्पेंशन इफेक्टिव होगा अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, ओके, अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। सस्पेंशन नॉट रिव्यूड, यदि यदि 90 डेज में सस्पेंशन रिव्यू नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली जो सस्पेंशन लैप्सेस हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, यदि एक्सटेंड रिव्यू आफ्टर 90 डेज, एक्सटेंड और रिवोक, ओके, ये मैंडेटरी। तो 90 डेज मींस एक्चुअली ऑटोमेटिकली आपको विद इन 90 डेज में रिव्यू कमिटी एग्जामिन करना चाहिए क्या वो सस्पेंशन एक्सटेंड होगा कि रिवोक होगा। ओके, क्लियर? तो ये चीज को थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया। ये रिव्यू एक्चुअली विद इन 90 डेज, आफ्टर मत कीजिए रिव्यू, ओके, विद इन 90 डेज कि बिफोर 90 डेज, यहां पर कर दीजिए बिफोर 90 डेज, क्योंकि 90 डेज क्रॉस हो जाएगा तो ये मान लेंगे कि सस्पेंशन लैप्सेस हो गया। 90 डेज क्रॉस हो गया, सस्पेंशन जो डेज है 90 डेज क्रॉस हो गया मगर रिव्यू नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन लैप्सेस हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो रिव्यू करना है विद इन 90 डेज। ठीक है, चलो अभी एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हिच अथॉरिटी is empowered to place a government servant under suspension under CCA rule 10(1). 10(1) means किस सर्कमस्टांसेस में एक्चुअली अपॉइंटिंग अथॉरिटी, किस सर्कमस्टांसेस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा, यहां पर व्हिच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड, और किस अथॉरिटी के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, एनी सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी से जो ऊपर ऑफिसर है, एनी अथॉरिटी टू व्हिच इट इज सबऑर्डिनेट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट है तो इट मींस अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जो सुपीरियर ऑफिसर से वो भी सस्पेंड कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये चारों है जिनके पास पावर है वो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकते हैं यदि कुछ चार्ज लगता है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हम रूल देखे थे रूल 10 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, क्लियरली मेंशन था। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में रूल 10 सबसेक्शन 2 उसका जो फर्स्ट बिट है, प्रोवाइड्स दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट shall be deemed to have been placed under suspension from the date of, किस डेट में? फ्रॉम द डेट ऑफ, द डेट ऑफ इज अरेस्ट irrespective of detention period, the date of issue of suspension order, okay, the date of framing of charge, the date of detention in custody exceeding 48 hours। ये deemed suspension पूछा है, deemed suspension, तो deemed ऑटोमेटिक सस्पेंशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द डेट ऑफ डिटेंशन इन कस्टडी एक्सीडिंग 48 आवर्स, ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वो सस्पेंडेड है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट कन्विक्ट हुआ एंड देन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स शैल बी डीम्ड सस्पेंडेड। अच्छा, कन्विक्शन होने के बाद उसको सेंटेंस मिला, इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस मिला, और जो इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स शैल बी डीम्ड सस्पेंडेड। किस डेट से, कैसे हम उसको 48 आवर्स कैसे काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल ऑर्डर। मैं बताया था जिस डेट में इम्प्रिजनमेंट इफेक्टिव होगा वहां से 48 आवर्स को हम काउंट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्टेड डेट। एक डेट में कन्विक्शन डिक्लेयर हुआ मगर एक डेट से एक्चुअली इम्प्रिजनमेंट से जो इम्प्रिजनमेंट मिला तो एक पर्टिकुलर डेट से, तो यहां पर याद रखेंगे यदि कन्विक्टेड है और उसके बाद सेंटेंस मिला इम्प्रिजनमेंट, तो जिस डेट से इम्प्रिजनमेंट इफेक्टिव होगा वहां से हम 48 आवर्स काउंट करेंगे, और 48 आवर्स क्रॉस हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट एक्सीड्स 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी रूल 10 सबसेक्शन 2 में मेंशन है, इसको मैं बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट इज सेट असाइड बाय कोर्ट प्योरली ऑन टेक्निकल, अच्छा, प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स मींस आप देखिए ये क्लियरली मेंशन था 10 सबसेक्शन 4। यदि कोर्ट क्या किया,
अभी जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई को रिमूव कर दिया गया था जॉब से, कि डिसमिस कर दिया गया था, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया था, और कोर्ट को गया और कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि फ्रेश इंक्वायरी करो, उसका फ्रेश इंक्वायरी करो और उसको रीइंस्टेट करो। ओके, तो वो सेट असाइड कर दिया, जो डिसमिसल की, रिमूवल की, कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, हटा दिया, और बोल दिया कि फ्रेश इंक्वायरी करो। उसमें कोर्ट क्या है ना, कोर्ट मेरिट ऑफ द केस को नहीं गया। विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ द केस, टेक्निकल ग्राउंड्स में कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि जो डिसमिसल ऑर्डर है, कि रिमूवल ऑर्डर है, कि जो कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर है, उसको हटा दिया जाए, उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए। उसमें देन द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट बी सस्पेंडेड अगेन। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अंडर सस्पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसमिसल इफ द फर्दर इंक्वायरी इज ऑर्डर्ड। द सस्पेंशन ऑटोमेटिकली लैप्सेस, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी, यदि इस केस में कोर्ट बोल दिया कि डिसमिसल को हटा दिया जाए और फ्रेश इंक्वायरी हो, तो उस केस में जिस डेट में एक्चुअली ओरिजिनल डेट, जिस ओरिजिनल डेट से उसको डिसमिसल ऑर्डर मिला था, वहां से ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंडेड है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन एन अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इश्यूज एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, इट मस्ट, मैं बताया था इसको क्लियरली, यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नीचे में एक अथॉरिटी है, उसका नाम एम है, अथॉरिटी एम है, यदि ये सस्पेंशन ऑर्डर कर दिया, तो ये क्या करेगा ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक रिपोर्ट देगा कि इस ग्राउंड में, इस सर्कमस्टांस में मैं सस्पेंशन ऑर्डर दिया। यदि, क्योंकि ये लोअर अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर जो सुपरियर ऑफिसर है वो सस्पेंड कर सकता है, मगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नीचे वाला जो ऑफिसर है, यदि वो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू करता है, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू करने के बाद वो एक रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, सीक कंकरेंस फ्रॉम द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस फोर्थविथ टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। वो किस सर्कमस्टांस में, वो जो लोअर अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यदि वो सस्पेंशन ऑर्डर किस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देता है, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, किस सर्कमस्टांसेस में वो एक्चुअली कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दिया, तो उसका एक रिपोर्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट is under deemed suspension due to detention in custody, the 90-day period for review shall be counted। यदि कस्टडी में है, यदि कस्टडी में है और वो 90 पीरियड जो रिव्यू पीरियड होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड, देन विद इन, जिस डेट में सस्पेंशन इफेक्टिव हुआ, वहां से विद इन 90 डेज उसका रिव्यू होगा, रिव्यू कमिटी बनेगा, रिव्यू कमिटी एग्जामाइन करेगा, और वो चाहे सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जाएगा कि रिवोक किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। तो यहां पर यदि कंसर्न एम्प्लॉय कस्टडी में है, तो ये 90 डेज पीरियड फॉर रिव्यू कैसे हम काउंट करेंगे? इसमें दो चीज है, जिस डेट में उसको डिटेंशन में रिलीज कर दिया जाएगा, जिस डेट में उसको जो वो कस्टडी में था, ओके, डिटेंशन होकर उसको रिलीज कर दिया गया, और यदि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इंफॉर्म किया कि मुझे इसी डेट से कस्टडी से रिलीज कर दिया गया, whichever is later। तो इसमें आइदर, देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आइदर बी और सी, whichever is later। एक है फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, हम वहां से 90 डेज को काउंट करेंगे फॉर रिव्यू, और जिस डेट में फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ रिलीज टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये दोनों केस में, ठीक है, यही दोनों बी और सी, बी और सी में whichever is later। ठीक है, whichever is later, इसको भी मैं एक्सप्लेन किया था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पर 2 स्टेटमेंट्स हैं। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलोन कैन प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, ये गलत है। हम ये मानेंगे कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आप देखिए 10 सबसेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सुपरियर ऑफिसर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर जो ऑफिसर्स है वो कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, और कंसर्न ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी को एम्पावर करेंगे, ओके, पावर देंगे कि वो सस्पेंड कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, हो सकता है।
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सस्पेंड कर सकता है, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी को पावर देंगे वो भी सस्पेंड कर सकता है। तो उसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे भी स्टेटमेंट्स को देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर भी 3 स्टेटमेंट्स दिया है, करेक्ट को हम डिटेक्ट करेंगे। सस्पेंशन में बी ऑर्डर्ड व्हेन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, ये करेक्ट है। आप देखिए सबसेक्शन 10(1) में, सबसेक्शन जो 10 सबसेक्शन 1 देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा कि अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तब सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को। सस्पेंशन में ऑल्सो बी ऑर्डर्ड व्हेन द एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसमें सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा। सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड ओनली आफ्टर कन्विक्शन इन ए, सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड ओनली आफ्टर कन्विक्शन इन ए क्रिमिनल केस। ऐसा नहीं, क्रिमिनल केस का जब क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्रिमिनल केस ट्रायल स्टेज में है, कि क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उसमें भी सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा। तो वो बोला आफ्टर कन्विक्शन, ऐसा नहीं, रॉन्ग, गलत है। आप 10 सबसेक्शन 1 देखिए, यहां पर सर्कमस्टांसेस दिया है क्लियरली, 3 सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यहां पर जो है करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, थर्ड वन इज नॉट करेक्ट वन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 को चलेंगे। अगेन अनदर क्वेश्चन इसमें दिया है अंडर सीसीए रूल्स 10(1) फर्स्ट सबसेक्शन 1, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, व्हेन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग। ठीक है, व्हेन ही इज फाउंड गिल्टी इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, अच्छा ये नहीं है, when he is engaged in activities prejudicial to the interest of the security of the state, ये ठीक है। when a criminal case is under investigation, inquiry or trial against him, ये ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट नहीं है कि फाउंड गिल्टी, तो फाउंड गिल्टी नहीं है। यदि कुछ इट मींस प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है, ओके, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगेंस्ट में, तो और डिसाइड होता है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कि कोई क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई क्रिमिनल केस का ट्रायल चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस वो सब कुछ पेंडिंग है, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आप 10 सबसेक्शन 1 देखिए तीनों स्टेटमेंट को, तो यहां पर 1, 3, 4 क्लियरली सिचुएशन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर अंडरलाइन कर दीजिए, जब क्वेश्चन मिलता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स, ये ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन रूल 10 सबसेक्शन 2 देखिए। द 48 आवर पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, द 48 आवर पीरियड is counted from the date of detention, ये ठीक है। ओके, deemed suspension does not apply to detention on criminal charges, ऐसा नहीं है, कोई भी डिटेंशन क्रिमिनल, कोई भी केस में वो डिटेंशन है और जिस डेट में वो डिटेन हुआ कस्टडी में, उसी से हम काउंट करेंगे 48 आवर्स, और वो एक्सीड हो गया तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हम मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स वो एक्चुअली करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट तो क्लियर हो गया था। 48 आवर पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, जिस डेट में डिटेंशन हुआ वहां से हम 48 आवर्स को काउंट करेंगे, और वो 48 आवर्स एक्सीड हो गया तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मानेंगे। वो बोला कि क्रिमिनल चार्जेस में यदि डिटेंशन होता है उस केस में डीम्ड सस्पेंशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी केस में वो डिटेन होता है कस्टडी में, और जिस डेट में वो एक्चुअली उसको डिटेन किया गया वहां से हम 48 आवर्स काउंट करेंगे, और वो 48 आवर्स क्रॉस हो गया तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हम मान लेंगे। तो यहां पर जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट 3 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर करेक्ट देखेंगे 2 स्टेटमेंट्स है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस
and sentenced to imprisonment exceeding 48 hours shall be deemed suspended from the date of conviction. From the date of imprisonment होना चाहिए, ये from the date of conviction नहीं, from the date of imprisonment होना चाहिए. यदि convicted हुआ, मैं बताया था convicted हुआ, convicted के बाद imprisonment sentence हुआ, तो जिस डेट से उसका imprisonment इफेक्टिव होगा वहां से हम 48 आवर्स काउंट करेंगे. ओके, सो imprisonment exceeds 48 आवर्स, इस केस में एक्चुअली ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मानेंगे. और इंप्रिजनमेंट यदि इंटरमिटेंट होता है, माने वो कन्विक्टेड हुआ और जेल गया, फिर बाहर आ गया, फिर जेल गया, बाहर आ गया, पूरा एडेड कर देंगे. ओके, जो जितना टाइम वो इंप्रिजनमेंट में रहा पार्ट पार्ट में पूरा एडेड करेंगे और 48 आवर्स क्रॉस हो गया तो उसको हम ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मानेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ इंप्रिजनमेंट. द 48 आवर पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट आफ्टर कन्विक्शन. ये करेक्ट है. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ओनली टू. ऑप्शन बी इज द ओनली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ए सॉरी, हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओनली स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट वन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पर भी दो स्टेटमेंट्स दे दिया. करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे. ठीक है. इफ एन अथॉरिटी lower than the appointing authority issues an order of suspension, it must report the matter to the appointing authority forthwith. ये करेक्ट है. यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नीचे में जो अथॉरिटी है, यदि वो सस्पेंशन ऑर्डर इशू करता है तो इमीडिएटली वो किस सर्कमस्टांसेस में एक्चुअली सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया तो इमीडिएटली वो रिपोर्ट दे देगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को. ठीक है. नो सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड इफ द ऑर्डर इज मेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई रिपोर्ट का जरूरत नहीं है यदि कंट्रोलर सीएजी एक्चुअली सस्पेंड कर देता है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, उसको कोई रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को. ठीक है. ये दोनों करेक्ट है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर भी दे दिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखिए यहां पर भी दो स्टेटमेंट है. इफ द पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल और रिमूवल इज सेट असाइड ऑन अपील और रिव्यू एंड द केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी के लिए दे दिया गया. जो डिसमिसल रिमूवल ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया गया, हटा दिया गया और फर्दर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया गया. तो यहां पर हम सस्पेंशन कहां से मानेंगे? जो द सस्पेंशन इज डीम्ड टू हैव कंटिन्यूड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसमिसल. एब्सोल्यूट करेक्ट है. इस केस में जिस डेट में डिसमिसल का ओरिजिनल ऑर्डर मिला था वहां से ऑटोमेटिकली मान लेंगे वो सस्पेंडेड है कंसर्न एम्प्लॉय अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. नेक्स्ट वन, सच सस्पेंशन कंटिन्यूज अंटिल फर्दर ऑर्डर्स आर इश्यूड. ये भी करेक्ट है. तो दोनों करेक्ट है. यहां पर पूछा है इनकरेक्ट, नाइदर 1 और 2. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर भी इनकरेक्ट पूछा है. स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स है. An order of suspension can be revoked or modified by the authority that issued it or by any authority to which it is subordinate. क्लियर है. जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, अच्छा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन को कौन रिवोक करेगा, मॉडिफाई करेगा? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन को सपोज यहां पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंड किया था तो इस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है. नहीं तो उसके ऊपर जो ऑफिसर है, सुपरियर ऑफिसर है, उसके ऊपर जो ऑफिसर है, ओके, सुपरियर ऑफिसर, वो भी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. ठीक है. याद रखो, जिस अथॉरिटी ने सस्पेंड किया था वो मॉडिफाई कर सकता है और रिवोक कर सकता है. नहीं तो उसका जो सुपरियर ऑफिसर है वो मॉडिफाई और रिव्यू कर सकता है, मॉडिफाई की रिवोक कर सकता है सस्पेंशन ऑर्डर को. ठीक है. तो यहां पर दो ऑप्शन है. जो अथॉरिटी सस्पेंड किया था वो कर सकता है मॉडिफाई और रिवोक, अदरवाइज वो अथॉरिटी का जो सुपरियर ऑफिसर है वो कर सकता है. तो ये करेक्ट है. नो अदर अथॉरिटी कैन रिवोक द सस्पेंशन. एनी अदर अथॉरिटी नहीं करेगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. नो अदर अथॉरिटी कैन रिवोक द सस्पेंशन. ये भी ठीक है. दोनों ठीक है. तो उसमें आपको याद रखना है, सपोज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये सस्पेंडेड किया था, ओके, सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया था. ये एक्चुअली जब रिवोक होगा कि मॉडिफाई होगा यही कर सकता है और नहीं तो उसका सुपरियर ऑफिसर कर सकता है.
एनी अदर अथॉरिटी नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू, इनकरेक्ट कोई नहीं है, दोनों करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। द सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड बिफोर 90 डेज ऑफ द इफेक्टिव डेट। ठीक है, जिस डेट में सस्पेंशन इफेक्ट होगा उसका 90 डेज के अंदर रिव्यू किया जाएगा सस्पेंशन को, कि चाहे वो एक्सटेंशन होगा कि रिवोक किया जाएगा। फर्दर एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सीड 180 डेज एट ए टाइम। ठीक है, यदि एक्सटेंशन होगा at each time the suspension can be extended for 180 days at a time. Review is not required in the case of deemed suspension. Review is not required in the case of deemed suspension due to detention if the person continue डिटेंशन में है, कस्टडी में, वहां पर रिव्यू का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिव्यू हम कब करेंगे? जब वो कस्टडी से रिलीज होगा। ओके, मैं बोला था कस्टडी से रिलीज होगा जिस डेट में, और वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि इस डेट में मुझे कस्टडी से रिलीज किया गया। तो इसी दोनों में जो लेटर है, ओके, तो ये दोनों केस में विच एवर इज लेटर, उसी से हम 90 डेज काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है तीनों एक्चुअली करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। टू स्टेटमेंट्स गिवन। इफ ए कोर्ट सेट्स असाइड डिसमिसल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। टेक्निकल ग्राउंड्स मींस क्या है, मैं बताया था टेक्निकल ग्राउंड्स में जब एक्चुअली विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, जब कोर्ट मेरिट ऑफ द केस को नहीं गया, वो डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और फ्रेश इंक्वायरी के लिए बोल दिया, टू होल्ड ए फर्दर इंक्वायरी, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय को ऑटोमेटिक डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा जिस डेट से उसको ओरिजिनल डिसमिसल ऑर्डर मिला था। द एम्प्लॉय इज डीम्ड सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसमिसल, ये करेक्ट है। सच फर्दर इंक्वायरी कैन बी ऑर्डर्ड ओनली व्हेन द कोर्ट हैज नॉट गॉन इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। मैं बताया था कोर्ट क्या किया, मेरिट्स ऑफ द केस को नहीं गया, टेक्निकल ग्राउंड्स में डिक्लेयर कर दिया कि जो डिसमिसल ऑर्डर दिया था कंसर्न एम्प्लॉय को, उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए और फ्रेश इंक्वायरी किया जाए। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये भी ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन उसको माना जाएगा कहां से, ना जिस डेट में उसको ओरिजिनल डिसमिसल ऑर्डर मिला था। तो दोनों करेक्ट है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट में डी, नाइदर वन नॉर टू, आंसर इज डी। तो ये 27 MCQs में डिस्कस किया, मगर आपको याद रखना है, और एक चीज मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अथॉरिटी वो सस्पेंड करता है, वही सपोज अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंड किया तो रिवोक का बात आएगा। ठीक है, कि मॉडिफाई का, सस्पेंशन का मॉडिफाई का बात आएगा। तो इस केस में जो अथॉरिटी सस्पेंड किया था वही रिवोक और मॉडिफाई करेगा, और नहीं तो उसका सुपीरियर ऑफिसर, नहीं तो उसका सुपीरियर ऑफिसर कर सकता है, और कोई भी अथॉरिटी नहीं करेगा, याद रखिए। यदि, और एक बार कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं बता देता हूं, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने वो, ठीक है, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने वो दे दिया एक्चुअली, सस्पेंड किया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो वही अथॉरिटी वो रिवोक कर सकता है और सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकता है, नहीं तो उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को याद कीजिए, जैसे है डिफाइन सस्पेंशन अंडर द CCA रूल्स 1965। ये भी क्लियरली मेंशन है कि बेसिकली सस्पेंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन डेफिनेशन रूल 10(1) में है, व्हिच अथॉरिटीज आर कॉम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, बोला था। इस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, ये भी 10 सबसेक्शन 1 में है। व्हाट इज मीन बाय डीम्ड ऑटोमेटिक सस्पेंशन, देखिए वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड व्हेन सस्पेंशन इज ऑर्डर्ड बाय लोअर अथॉरिटी।
अच्छा, लोअर अथॉरिटी यदि सस्पेंड करता है तो इमीडिएटली वो एक रिपोर्ट दे देगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि इसी सर्कमस्टांसेस में मैं सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रूल 10, 3 and 4 रिलेटिंग टू कंटिन्यूएशन ऑफ सस्पेंशन आफ्टर पेनल्टी सेट असाइड। एक 10, 3 में डिपार्टमेंटल का होता है अपील और रिव्यू, और ये कोर्ट का होता है अपील रिव्यू, जिसमें डिसमिसल, रिमूवल और जो कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया गया था उसको हटा दिया गया और फ्रेश इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया। और वहां से जो सस्पेंशन इफेक्टिव होगा ना, जिस डेट में डिसमिसल ऑर्डर मिला था वहां से ही ऑटोमेटिक सस्पेंशन एक्चुअली कंटिन्यू होगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, खाली मैं बता देता हूं किस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें भी है डिस्कस द ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इट इज रिव्यू प्रोसेस, इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन ए सस्पेंशन ऑर्डर बी कंटिन्यूड व्हेन मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। यदि मल्टीपल, एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया, ऐसे 2-3 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया, वहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलता है कि जब तक जो सभी प्रोसीडिंग्स ओवर ना हो जाए तब तक सस्पेंशन कंटिन्यू होगा। क्या ना ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन भी मॉडिफाइड और रिवोक्ड इफ यस बाय हुम। अच्छा, मैं अभी बताया था कौन मॉडिफाई रिवोक करेगा ना, जो अथॉरिटी सस्पेंड किया था वही मॉडिफाई और रिवोक कर सकता है, नहीं तो उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है वो कर सकता है। ठीक है, जो अथॉरिटी ने सस्पेंड किया था वो अथॉरिटी सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है, नहीं तो उसका सुपीरियर ऑफिसर कर सकता है, और कोई अथॉरिटी नहीं कर सकता। सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, आप देखिए मैं डिस्कस कर चुका हूं। हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप ए सर्विसेज, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, नहीं तो वो डेलीगेशन पावर एनी अदर अथॉरिटी को देते हैं। आप रूल 8 देख लीजिए और इसमें एग्जांपल्स भी है। कैन द प्रेसिडेंट डेलीगेट हिज पावर, यस डेलीगेशन पावर है, वो देते हैं अदर अथॉरिटी को ग्रुप ए पोस्ट को अपॉइंटमेंट देने के लिए, ये भी रूल 8 में है। व्हाट इज रूल 9? रूल 9 में जो BCD पोस्ट होता है, चाहे सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल पोस्ट, उसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं 2 पार्ट में। सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप B, C and D पोस्ट, और सेंट्रल सिविल पोस्ट जिसको बोलते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस, अलग अलग है, आप देख लीजिए 2 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। व्हिच अथॉरिटीज मेक अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप B, C and D सर्विसेज एंड पोस्ट अदर देन जनरल सेंट्रल, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में बताया था, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो पोस्ट है BCD बिलोंग्स टू द सर्विसेज, उसमें क्या है ना, जो शेड्यूल में जो अथॉरिटीज लिस्टेड है वही वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, मगर जनरल अदर देन जनरल, अच्छा जनरल यहां पर अदर देन मींस ये जो क्वेश्चन पूछा है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, जनरल सेंट्रल सर्विस में क्या है, जो पोस्ट है दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी सर्विस। यहां पर क्या है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनरल और स्पेशल ऑर्डर में स्पेसिफाई करते हैं कि ये अथॉरिटी अपॉइंटमेंट देगा। यदि ऐसा कुछ ऑर्डर इशू नहीं करते हैं तब इसी रूल का शेड्यूल में जो अथॉरिटीज लिस्टेड है वो अपॉइंटमेंट देंगे। ठीक है, तो आज ये सेकंड पार्ट था, क्लियरली मेंशन किया। ठीक है, तो सो माय फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट क्वालिटी वीडियो इन सब्सिक्वेंट टाइम। आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार ऑल ऑफ यू, एंड जस्ट यू वेट फॉर द थर्ड पार्ट।